Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. Today onwards we are going to start basic principles of physics, and for this we would study motion, force, work and energy, sound, light, electricity, heat and temperature. Right? Basic principles of physics are included in these topics. Also, on the basis of previous year's questions, I have selected these topics. So, if we study these topics, then definitely we would have studied the basic principles of physics, also important topics for MPPSC prelims examination. Right? So, we will study these topics in depth, and in this lecture we will study motion and Newton's laws of motion. Right? Now start the lecture and understand what is motion. See, there are two states of matter in physics. The first is motion state and second is rest state. Now what is motion state? See, if an object changes its position with respect to another object with a change in time, then it is said to be in a state of motion. And if an object does not change its position with respect to other object with a change in time, then it is said to be in the state of rest. Right? For an example, we will take the example of bus. Right? This is bus. Right? And now two passengers are sitting in this bus. Right? And here is a person who is standing here. Also, there is a tree here. Clear? Now the bus is moving through this way. And after some time, the bus has reached there. And here are the two passengers. So look at here. Right? With the change in time. Right? With the change in time, ये जो पैसेंजर है, ये इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है, इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है. राइट? तो हम कहेंगे कि द पैसेंजर फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट पैसेंजर, दिस इज सेकेंड पैसेंजर. राइट? सो द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पैसेंजर डिड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड पैसेंजर विद चेंज इन टाइम, देयरफॉर पैसेंजर फर्स्ट is in the state of rest with respect to passenger second. In the same way, अगर हम यहाँ पर कहें कि ये जो person है, right? A person is standing here, also a tree is standing here, right? So यहाँ पर जो tree की position है या इस person की जो position है, right? So the position of this person or the position of tree is not changing with respect to change in that time. Therefore, ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है. राइट? बट इस पर्सन की तुलना में विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, राइट, जिसको हम कह सकते हैं कि मोहन, जैसे लेट्स से दिस इज मोहन. राइट? सो विद रिस्पेक्ट टू मोहन द बस इज मूविंग, राइट, एंड विद इन 10 seconds, right? So जो 10 second है, within 10 seconds the bus was here and reached there. So within seconds the position of bus changed from here to here. So we can say that the bus is in motion state with respect to Mohan. क्यों? क्योंकि मोहन के रिस्पेक्ट में with the change in time the position of bus is changing. Right? Before 10 seconds the bus was here and after 10 seconds the bus reached there, which means with the change in time the position of bus changed from here to there. Therefore, with respect to Mohan the bus is in motion state. In the same way अगर हम कहें तो ये जो ट्री है, इस ट्री के कंपैरिजन में ये जो बस है ये कौन सी स्टेट में होगी? मोशन स्टेट में होगी. क्योंकि जैसे जैसे जो है टाइम में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, राइट, द पोजीशन ऑफ बस चेंज्ड फ्रॉम हियर टू हियर. या मैं ये कहूँ कि मोहन के कंपैरिजन में ये जो पैसेंजर फर्स्ट है ये भी कौन सी स्टेट में होगा? मोशन स्टेट में होगा. क्यों? बिकॉज राइट with the change in time the position of passenger first changed with respect to Mohan. Therefore, with respect to Mohan the
पैसेंजर फर्स्ट इज इन मोशन स्टेट, राइट। तो ये एक दूसरे से क्या है, जो कंसेप्ट है ये एक दूसरे से ही क्या है, जुड़ा हुआ है, राइट। आपको समझ में आया होगा। तो वेरी सिंपल है, इफ एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो पैसेंजर फर्स्ट हो, राइट, या ट्री हो, या पैसेंजर सेकेंड हो, या बस हो, राइट। If an object changes its position with respect to another object with a change in time, then it is said to be in the state of motion. For an example, right, the passenger first is in the state of motion with respect to Mohan or tree, because with the change in time, the position of passenger first is changing, right, and after 10 seconds, right, the passenger first reached there. Or we can say that with respect to Mohan or this tree, the bus is in motion state because the position of bus is changing with respect to time. Second, if an object does not change its position with respect to any other object with the change in time, then it is said to be in the state of rest, right. For an example, right, the passenger first is in rest state with respect to second, or Mohan is in rest state with respect to this tree, because the position of passenger first or passenger, the position of tree is not changing with respect to change in time with relation to the Mohan. Therefore यहाँ पर passenger first, passenger second के रिलेशन में और मोहन के रिलेशन में ट्री दोनों ही कौन सी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, राइट। तो इस तरीके से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। तो यहां पर मोशन क्या है, अगर हम सीधा सा कहें तो द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन. Simply, the change in the position of an object with respect to change in time is known as motion, right? And motion is determined by distance and displacement. Now you must come to know what is distance and what is displacement. Let's study distance. What is the distance? See, the length of the entire path, the length of entire path covered by a moving object is known as distance, right? And distance is a scalar quantity. For an example, Mohan started to walk in the north direction, then he took the right and walked 3 kilometers, right? Here he walked 4 kilometers and 3 kilometers, right? What is the distance, right? How many distance he covered, right? तो टोटल क्या हो जाएगी यहाँ पर, the distance would be 4 plus का 7 is equals to, sorry, 4 is equals to 3 is equals to 7 kilometer, right? So if there is a first example, Mohan started to walk in the east direction and he walked 4 kilometer, then he took the right and walked 3 kilometer, then what would be the distance covered by him? So distance covered by him would be 7 kilometer, because what is the distance? Total length of the entire path, right? So simply what is the length? What is distance? The total length, right? The total length of the entire path. The total length of entire path covered by a moving object is known as distance, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और the value of distance is always positive. Clear? Now, what is displacement? See, the shortest distance between any object's final position and the primary position is known as the displacement, right? For an example, here the primary or initial position of, let's say, a person is A and the final position is B, right? अब इन दोनों के बीच की जो shortest distance है, किसको? Shortest distance, right? So the shortest distance between the final position and the initial position of an object is known as displacement. अब जो shortest distance है ये always क्या होती है? एक line होती है, straight line होती है, right? So if I draw here a straight line, then this would be the displacement, because this is the initial position of the person and this is the final position of the person. So the shortest distance between the final position and the
इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, राइट। सो हियर वी वुड हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बिकॉज A and B, the shortest distance between A and B is the hypotenuse. So AV is equals to under the root AB square. This is a right angle triangle, right? So let's say हमने इसको यहाँ पर मान लिया x. So AX square plus का XB का whole square. So which means that 16 plus का 9, that is 25, that is 5. So what is the distance, shortest distance between A and B, that is 5. तो यहाँ पर 5 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, और डिस्टेंस कितनी होगी 7 किलोमीटर. सो अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन, राइट. मिस्टर मोहन, अब मैं यहाँ पर नाम ही ले लेता हूँ, राइट. मिस्टर मोहन स्टार्टेड टू वॉक इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन walked 4 kilometer, then he took the right, right, he took the right and walked 3 kilometer and reached the place V, right. Now what is the distance covered by Mohan and what is the displacement covered by Mohan? तो distance कितनी होगी, the total length of the path, the total length of the path क्या होगी, यहाँ पर डिस्टेंस होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर क्या होगी यहाँ पर डिस्टेंस होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 किलोमीटर. क्यों, क्योंकि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो बी और ए के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हाइपोटेनियस होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से जब हम हाइपोटेनियस निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, डिस्टेंस होगी 7 एंड डिस्प्लेसमेंट होगा कितना 5. इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, राइट. अ प्लेयर स्टार्टेड टू रन फ्रॉम अ प्लेस ए एंड कंप्लीटेड अ 1 राउंड, देन व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट बाय हिम. तो जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन ने यहां से दौड़ना शुरू किया एंड ही कंप्लीटेड, राइट, ही कंप्लीटेड 1 सर्कल, right, 1 circle. Now what would be the displacement? अब देखिए यहां पर समझिए, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा 0 होगा. क्यों, क्योंकि this is the initial position and this is the final position. So the shortest distance between initial position and final position is the same, therefore displacement would be 0, right. अब जैसे मैंने कहा कि तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट. सो in this right, in this way we have studied distance and displacement, right. So what is distance, the length of entire path, right, the length of entire path covered by a moving object is known as distance. Distance is a scalar quantity and the value of distance is always positive, right. Then the shortest, right, the shortest distance between the final position and the initial position of a moving object is known as displacement, and displacement is a vector quantity and the value of displacement can be positive, negative as well as 0, right, जिसको मैंने अभी आपको explain किया था. Now speed, right, very simple. The value of distance covered by an object in unit time is known as the speed of that object, right. So the value of distance covered by an object in unit time is known as speed of that object, and this is also a scalar quantity. So speed equals to distance upon time. The SI unit of speed is meter and second. So meter per second, the SI unit of speed is meter per second, और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा LT माइनस का 1, राइट. नो वेलोसिटी, अब देखिए, if you have understood the distance then you would come to know what is speed.
if you have understood what is displacement, then you would come to know what is velocity, right? What is velocity? So the total distance covered by an object in a unit time is known as velocity, राइट तो कुल मिलाकर यूनिट टाइम में, राइट यूनिट टाइम जैसे हमने मान लिया 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको ही किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कहा जाता है। वैसे ही यूनिट टाइम अर्थात 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, राइट। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट, the total displacement covered by an object in a unit time is known as the velocity of that object. And since displacement is vector quantity, therefore velocity is also vector quantity. And what is the formula of velocity? Displacement upon time. Therefore the unit of velocity would be meter per second, and dimensional formula would be same, LT minus का 1. Now what is acceleration? See, the velocity of an object changes with the time, then the rate of change of velocity of that object is known as acceleration, right? For an example, you are riding a bike and you started, for an example, you are sitting on a bicycle, right? This is your modern bicycle, I think. चलिए, तो यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, और जब आप बाइसिकल से जो है यहाँ से चलना शुरू करेंगे, सो आपकी जो इनिशियली स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, राइट, स्पीड या सिंपली मैं यहाँ पर लूँ वेलोसिटी, राइट, तो वो आपकी कितनी होगी? 0 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यू आर इन रेस्ट स्टेट। बट जैसे ही आप जो है साइकिल चलाना प्रारंभ करेंगे, यू विल स्टार्ट riding your bicycle, then you will increase your speed as well. Let's say here your speed is approximately 20 किलोमीटर पर आवर। बट क्या जैसे ही आपने चलना शुरू किया, क्या आपकी स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर हो गई? नहीं, राइट, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ी है, राइट। जैसे शुरू में 0, फिर 1, फिर 5, फिर लेट्स से 7 आपकी स्पीड हुई, फिर 17 हुई, देन यू रीच्ड द स्पीड ऑफ 20। सो विच मीन्स दैट आपकी स्पीड क्या है? चेंज हो रही है। एंड इफ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, तो उस रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। इफ द चेंजेस इन वेलोसिटी इज वेरी हाई, देन एक्सेलरेशन वुड बी हाई, और यदि वेलोसिटी जो है स्पीड में चेंजेस क्या है? कम है, तो उससे भी एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम होगा। सो सिंपली, right, simply we can say that if velocity of an object changes with the time, then the rate of change of velocity is known as acceleration, right? And we can define a formula of acceleration. Acceleration is equals to, right, acceleration is equals to, right, change in velocity upon total time interval. For an example, I wrote an example here, right? Mohan started to ride a motorbike, and he reached the he got the velocity of 40 km per hour within meter per second, right, within 20 सेकेंड। देन व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो मोहन स्टार्टेड टू मूव ऑन थ्रू द बाइक, एंड इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। ही रीच्ड द, या he got the speed of 40 meter per second, that is final velocity 40 meter per second within how much time interval? 20 seconds. So t equals to 20. So what would be the acceleration? V minus का u upon t, that is 40 minus का 0 upon 20, that is 20 by 40. So here is 2 meter per second square. This is acceleration, right? So in this way you can find the acceleration, right?
where a is equals to acceleration, v is final velocity, initial velocity, t is duration, and जो acceleration है वो भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, because distance जो है, sorry, displacement is a vector quantity, therefore velocity is vector quantity, and velocity is vector quantity, therefore acceleration is also vector quantity, right? So simply this may be asked in the examination. You have to keep in the mind what is acceleration. If, see, if the velocity of an object changes with time, then the rate of change of velocity of that object is known as acceleration. Acceleration is equals to change in the velocity upon time interval, or in formula we can say v minus का u upon t. Here a is acceleration, v is final velocity, u is initial velocity, and t is duration, and acceleration is vector quantity, right? And here I would like to tell you that the unit of acceleration, right? So the unit of acceleration, यहाँ पर change in velocity, तो जो वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल की क्या होती है सेकेंड, तो जो यूनिट वुड बी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वुड बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, if we have to understand what is the relationship between, right, what is the relationship between acceleration, right, initial velocity, right, final velocity, and displacement, then through these equations we can find the relationship between final velocity, acceleration, time interval, etc. Right? So through the equations of motion we can understand the relationship between final velocity, right, initial velocity, time interval, and acceleration is known as equations of motion. And there are three equations of motions. इनको MCQs के लिए आपको याद रखना. द फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस का at, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन वी कैन फाइंड द acceleration as well, because v equals to u plus का at, so v minus का u equals to at, so v minus का u अपॉन t इज इक्वल्स टू a. तो इस तरीके से जो वेलोसिटी, जो मोशन का पहला इक्वेशन है उससे हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को. सो v इक्वल्स टू u प्लस का at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देन s इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ motion. Here v is final velocity, u is initial velocity, s is displacement or distance, and t is time taken. Right? So in this way we have studied distance, displacement, speed, velocity, and acceleration, and this would help us to understand the Newton's laws of motion. Now let's understand what are the Newton's laws of motion, right? So let's study Newton's laws of motion. See, Galileo and Isaac Newton first presented ideas regarding motion of object, right? जैसे हमने अभी समझा कि फिजिक्स में there are two states of an object, right? The first is motion state and second is रेस्ट स्टेट. तो जो मोशन है या मोशन स्टेट है, इसके बारे में पहले किसने बताया था, गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन ने, राइट? सो गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन फर्स्ट प्रेजेंटेड द आइडियाज रिगार्डिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आइजैक न्यूटन इन हिज बुक Principia in 1687 describes his ideas of motion in the form of three laws. उनको ही क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कहा जाता है, राइट? सो न्यूटन, आइजैक न्यूटन प्रेजेंटेड हिज लॉस ऑफ मोशन in his book Principia in 1687. Now the first law of motion, और इसको ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, राइट? क्योंकि दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट inertia, therefore it is also known as law of inertia. Clear?
चलिए लेट्स स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. राइट, सी if an object is at rest state, so it will remain at the rest state, and if the object is in motion state, then the object will be in motion state, right, unless a external force is applied, which means यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने कहा कि this is the box, राइट, ये क्या है यहाँ पर रेस्ट स्टेट में है. सो इट विल कीप ऑन इफ विल कीप ऑन इन द रेस्ट स्टेट. बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर जो है रोल कर रहा है, राइट, या किसी सर्टेन वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यह इसी क्या होगा, मोशन में रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. इन द सिंपल वे वी कैन से दैट ये हमारी अर्थ हो जाएगी एंड अदर planets, other satellites, artificial satellites are in motion state with respect to earth. और जो जितने भी सैटेलाइट हैं वो हमेशा मोशन की स्टेट में होते हैं और वो जब तक रहेंगे जब तक कि हम उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. राइट, सो इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, right, in a straight line with a uniform state, so it will continue to move as long as external force is applied. और इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है. राइट, सो सीधी सी बात है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा. बट यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन स्टेट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. एंड ये किसकी वजह से होता है, तो ये इनर्शिया की वजह से ही होता है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. Which simply means that it is clear from this that there must be a force for the change of state of an object. जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है रेस्ट स्टेट में है और उसको मोशन स्टेट में लेके आना है, सो वी वुड हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. और अगर कोई जो है कोई वस्तु जो है मूविंग है तो उसको अगर हमको रोकना है तो देयर वुड हैव आल्सो यहाँ पर क्या है, स्पेस. जैसे मुझे अगर ये जैसे जो बॉटल है इसको अगर मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्या हो गई, मोशन स्टेट में आ गई. वैसे ही जब मूव जो बस है, राइट, बस जब चलती है तो जो ब्रेक है, ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है तब जाकर वो किस में, रेस्ट स्टेट में आती है. तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. क्लियर. सो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will remain at the rest, or if it is moving in a straight line with a uniform state, it will continue to move as long as external force is applied, is known as the first law of motion or law of inertia. Right, this is also known as law of inertia, and it is clear from this that there must be a force for the change of state of an object. Now, what is inertia? See, inertia क्या है? Inertia is that property of an object due to which the object remains in the fixed state in the absence of external force. तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको ही क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. सो द रेजिस्टेंस टू चेंज इज नोन एज इनर्शिया. राइट, सो inertia is that property of an object due to which the object remains in the fixed state in the absence of external force. Hence, the resistance to the change is known as, right, resistance to change is known as inertia. और जो इनर्शिया है वो किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है. विच मीन्स अगर जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बॉक्स, राइट, एंड इट हैज 50 kg वेट, तो यही इसकी क्या होगी, इनर्शिया होगी. एंड हियर इज अ 500 kg बॉक्स, तो इसका इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी. विच सिंपली मीन्स दैट कि अगर हमको इसको मूव करना है तो वी वुड हैव टू अप्लाई द फोर्स, बट इफ वी हैव टू
मूव दिस बॉक्स देन डेफिनेटली इसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, तो इसके जो स्टेट है उसमें चेंज करने के लिए वी वुड हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स, राइट। और चूंकि इसको जो इसके बारे में जो जानकारी थी वो गैलीलियो ने भी जो है इस जानकारी को दिया था। देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ, इट इज आल्सो नोन एज Newton's first law, or it is also known as law of inertia. Right? Now there is three types of inertia. The first is inertia of rest, second inertia of motion, and third inertia of direction. And we would see the examples of this, right? And these examples are asked in the examination. The first is inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बस, राइट, एंड इस बस में जो है यहां पर क्या है, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और यहां पर क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। तो देखिए, या फिर जैसे मैंने कहा कि दिस इज द पर्सन, और ये किस पर है, यहां पर घोड़े पर है, ठीक है, समझ लेना बस। तो कुल मिलाकर अगर ये बस जो है this bundle suddenly it starts moving, right, this bus suddenly starts moving, or this horse suddenly it starts moving, तो in the both the conditions में जो लगेज है वो पीछे की ओर गिर जाएगा, जो पैसेंजर है वो भी पीछे की ओर जो है बैक हो जाएंगे, ये जो हॉर्स राइडर है, राइट, ये भी पीछे की ओर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि when the bus was in rest state or the horse was in rest state, the luggage or the passenger were also in the rest state. When suddenly suddenly bus started to move, suddenly the horse started to move, therefore luggage and passenger falling down to the backward side, and this is known as the inertia of rest. And because of this inertia of rest, luggage kept on the bus is tied, क्योंकि जैसे ही सडनली बस जो है चलना मूव करती है तो जो लगेज है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। द लगेज में फॉल ड्यू टू सडन स्टॉप और मूविंग द बस। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेशनरी, राइट, यहाँ पर जो स्टेशनरी जो व्हीकल है, राइट, जैसे स्टेशनरी व्हीकल हो जाएगा ये बस, व्हेन दिस बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, तो जो लगेज है या जो पैसेंजर है वो पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गेट जर्क बैकवर्ड, राइट। इन द सेम वे जो हॉर्समैन है वो भी है, हॉर्समैन फॉल्स बैकवर्ड व्हेन हॉर्स सडनली स्टार्ट्स मूविंग। साथ ही साथ हम यहाँ पर दो चीज और समझते हैं, राइट, holding the blanket and hitting it with the stick, right, the dust particles are separated from the blanket, क्योंकि जब हम ब्लैंकेट को इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे तो डस्ट के पार्टिकल भी कौन सी स्टेट में होंगे, रेस्ट स्टेट में होंगे। जब हम स्टिक से जोर से क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो ब्लैंकेट तो क्या हो जाएगा, मोशन स्टेट में आ जाएगा, बट डस्ट पार्टिकल अभी भी रेस्ट स्टेट में होंगे, इसीलिए वो सेपरेट हो जाएंगे। इन द सेम वे दिस इज अ ट्री, व्हेन, अब जब हम इस ट्री को सेक करेंगे तो जो फ्रूट्स हैं वो नीचे की ओर गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब जो इनिशियल में जो ट्री है और फ्रूट है और लीव्स है सभी क्या है, रेस्ट स्टेट में है। व्हेन वी सेक दिस ट्री तो उससे जो ब्रांचेस हैं वो तो मोशन में आ जाती हैं, बट जो लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं वो रेस्ट स्टेट में होते हैं, देयरफॉर द फ्रूट्स और द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। Now the inertia of motion, motion का मतलब क्या हुआ कि if the object is in motion then the object will keep on moving in the same direction unless external force is not applied, right, और उसको ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पर inertia of motion कहा जाएगा। और इसके भी क्या होंगे, सेम एग्जांपल्स होंगे, right, here are the two examples. Let's say here the bus is moving, the horse is moving, and if suddenly the bus stops, then in this condition luggage will fall down in the front side, right, passenger would get jerk inward side, and the horseman will
the horseman will fall down, right, in front of the horse, right? तो ये इसके तीनों ही क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, right? तो कुल मिलाकर ये कि when vehicle suddenly, right, when vehicle starts moving suddenly, तो उससे लगेज और पैसेंजर जो है, पैसेंजर्स फॉरवर्ड जो है जर्क मिलेगी उनको, और जो लगेज है वो आगे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे जो हॉर्समैन है, हॉर्समैन विल फॉल डाउन इन फ्रंट ऑफ द क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज द केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, बिकॉज यू आर राइडिंग अ बाइक, राइट? और सडनली जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो आपका जो हेड है वो जाके स्टीयरिंग पर क्या होता है, हिट होता है। देयरफॉर देयर इज अ इंजरी इन योर हेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्राइवर है उसकी क्या हो जाती है, जान चली जाती है। नाउ थर्ड इज inertia of direction. When a fast moving car turns, the person sitting in it leans in the direction opposite to the direction of the car's stand. For an example, कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो कुछ आप जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, आप मुड़ेंगे, राइट? ताकि जो है आपको जर्क ना लगे, राइट? तो इस तरीके से ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। सो व्हेन अ फास्ट मूविंग कार टर्न्स, द पर्सन सिटिंग इन इट लीन्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कार्स, राइट? ताकि क्या हो जाए, जैसे कार्स इस तरफ मुड़ने वाली तो आप थोड़ा इस तरीके की ओर झक जाते, राइट? इस तरीके की ओर लीन हो जाती। क्यों? क्योंकि जो बस है उसकी डायरेक्शन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, right? So in this way we have studied the first law of motion, also we have studied the law of inertia, and we have studied what is inertia and what are the types of inertia. Clear? Now we will study the second law of motion, but before that we have to study the momentum. What is momentum? See, the product of mass and velocity of an object is known as momentum, and momentum is vector quantity, right? Because of the velocity, right? So the product of mass and velocity of an object is known as momentum of that object. It is vector quantity and its unit is kilogram into meter per second, right? Or we can say that P equals to m into V, right? The mass kg and meter per second, therefore unit would be kg into meter per second, right? अब यहाँ से सिंपल है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो m into V, अब अगर किसी का मास ज़्यादा होगा सो डेफिनेटली उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इनकी वजह से ही जो फोर्स है वह भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे सिंपली मैं आपको बताऊं, राइट, कि अगर देयर इज अ 5, जैसे हमने ले लिया कि 50 kg, इफ 50 kg की, या हमने ले लिया कि यहाँ पर एक 500 kg, अ रॉक ऑफ 500 kg, राइट, एक 500 kg की रॉक है और वो किसी सिटी को हिट करे तो मैक्सिममली 2 से 3 बिल्डिंग क्या होंगे, डैमेज होंगी। बट यदि 500 kg का कोई एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करता है, सो बिकॉज द एस्टेरॉयड वुड हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी की होने के साथ ही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो दैट 500 kg एस्ट्रॉयड वुड वर्क एज अ एटम बम, और जब वो अर्थ से हिट करेगा तो एटम बम की तरह पे क्या रखेगा, इफेक्ट रहेगा। सो या तो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, या मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, राइट? और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो यही कहता है कि किसी भी जो पूरा का पूरा सिस्टम रहता है उसका मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा ही क्या रहता है, इक्वल रहता है, राइट? m1 इंटू v1 इंटू m2 इज इक्वल टू v2, ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही होता है, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. So what is momentum? See, what is momentum? The product of mass and velocity of an object is known as momentum. Momentum is equals to
P equals to mb, therefore the unit of momentum would be kilogram into meter, right, upon second, right, upon second, right. And according to the law of conservation of momentum, right, the momentum of a system remains the same, which means m1 into v1 is equals to m2 into v2, right. सो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। और इसके माध्यम से ही जो हम जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स acting on it and occurs in the same direction in which the force act. This is known as second law of motion, right? So the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force acting on it and occurs in the same direction in which the force act. इसको ही क्या कहते हैं? second law of motion कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए फॉर्मूला हमको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे हमने मान लिया कि लेट अस एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m है, राइट, और उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो v अप्लाई हो रहा है फॉर t टाइम के लिए। और जब हम उस पर f फोर्स अप्लाई करते हैं t टाइम के लिए, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द इनिशियल एंड फाइनेंशियल मोमेंटम वुड बी p1 एंड p2, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो वो कैसे निकालेंगे हम, p1 p2 माइनस का क्या निकालेंगे, p1। अब यहाँ पर p2 क्या है, तो p2 हो जाएगा यहाँ पर m, मास तो वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v, और m क्या हो जाएगा, u। तो इस तरीके से m को ले तो ये हो जाएगा v माइनस का u, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p। सो दिस इज क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, राइट। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फोर्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इज अप्लाइड, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, राइट, फोर्स के। सो विच मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t। तो इसीलिए f इक्वल्स टू, अब जो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, mv माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t, और इनटू क्या हो जाएगा, m। तो यहां पर f प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए v माइनस का u अपॉन t, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, राइट। तो f इक्वल्स टू kma। इस तरीके से जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, राइट। तो ये क्या कहलाता है, F प्रोपोर्शनल ma। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो किससे डिराइव करते हैं हम, राइट, फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, और फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। आल्सो यहाँ पर समझिए, अब देखिए यहाँ पर जो टाइम है, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स है, इंपैक्ट ऑफ जो फोर्स है वो जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स है, राइट। इसको अगर आप क्लियर से समझें तो हियर फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। इसीलिए अगर ये टाइम क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ये टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। नहीं आया समझ में, उसको मैं बताता हूं। जैसे देखिए, आ फील्डर कैचेस द बॉल, राइट, एंड ही सट्स डाउन हिज हैंड लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जब वो इस तरीके से कैच करेगा तो यहां पर जो इंपैक्ट का टाइम है वो ज्यादा होगा अगर टाइम ज्यादा होगा, राइट, सॉरी, अगर हम यहीं पर कैच करेंगे
तो इम्पैक्ट का टाइम क्या होगा, कम होगा, और टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी वजह से हाथों पर, राइट, हैंड्स में क्या होगी, जो है चोट ज्यादा लगेगी। इसीलिए जैसे कैच करते हैं हम हाथ नीचे कर लेते हैं ताकि उस बॉल को कैच करने का जो टाइम है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और टाइम अगर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है, वो क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से जो फील्डर है उसको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पहला तो यही है कि इन द गेम ऑफ क्रिकेट व्हेन फील्डर कैचेस अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल ही कैचेस द बॉल विद हिज हैंड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बॉल की वेलोसिटी में बैकवर्ड अपने हैंड को करेगा तो उससे जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो इम्पैक्ट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इसी वजह से उसको जो चोट है या हाथ पे जो पेन है वो क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से स्प्रिंग एंड शॉक एब्जर्व्स आर इंस्टॉल्ड टू अवॉइड शॉक इन व्हीकल्स। सिंपली जब भी कोई भी, राइट, जो सॉक्स होंगे तो जो स्प्रिंग्स होंगे, स्प्रिंग्स की वजह से, स्प्रिंग्स क्या करते हैं, ये टाइम को ही तो बढ़ाते हैं। जैसे ही जो व्हीकल है वो गड्ढे में जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या करेंगे, इस टाइम को बढ़ाएंगे, जिससे इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, कम होगा, और जिसकी वजह से भी जो जर्क है वो आपको कम लगेंगे, राइट। सो स्प्रिंग एंड शॉक एब्जर्वर्स आर इंस्टॉल्ड टू अवॉइड शॉक्स इन व्हीकल्स, राइट। थर्ड यहां पर हो जाएगा फॉलिंग ऑन सैंड और सॉफ्ट फ्लोर कॉजेज लेस इंजरी देन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर। क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर पर यदि आप जंप करेंगे तो डायरेक्टली जो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो मिनिमम होगा, इस वजह से ज्यादा क्या होगा, पेन होगा, यू विल गेट अ इंजरी और यू विल गेट सो मच ऑफ पेन। बट जब आप सैंड पर जंप करते हैं, राइट, सो द टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, देयरफॉर देयर इज अ लो फोर्स ऑफ इफेक्ट, और उसी की वजह से आपको पेन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो इन दिस वे हमने यहां पर जो है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझा, और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम जो है F इज प्रोपोर्शनल टू ma, विच मीन्स दैट हम यहाँ पर फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर K इज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर K को अगर हम यूनिट मान ले तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इफ मास इज टेकन 1 kg and the acceleration is 1 meter per second square, then there would be 1 Newton force. So simply अगर मैं ये कहूँ कि if an object of 1 kg, right, if object of 1 kg, right, when force is applied, an object of 1 kg, right, has acceleration of 1 meter per second, then definitely this force would be 1 Newton. तो सिंपली है, यदि 1 kg की बॉल पर फोर्स अप्लाई करने से यदि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन जो है प्रोड्यूस हो जाता है तो उस फोर्स को ही क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, राइट, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, एज वेल एज वी हैव अंडरस्टूड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, right, and also we have understood the different applications of second law of motion. Now here comes the third law of motion, which is so simple, right, the action reaction law, right. What is action reaction law? See, simply for every action there is an equal and opposite reaction. This is known as Newton's third law, right. So for every action there is an equal and opposite reaction, or in the other words we can say that as much as one object exerts a force on another object in action, then other object also exerts the same force in the opposite direction as a reaction, or in simple words we can say that for every action there is an equal and opposite reaction. Here जो actions हैं और जो reactions हैं act as a pair, right, on separate objects. तो जो action और reactions है वो एक pair के रूप में कार्य करता है
किस पर, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स पर, राइट, नोट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये सेपरेट ऑब्जेक्ट पर जो है एक पेयर के रूप में एक्शंस और रिएक्शंस जो है वर्क करते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट इज व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, राइट, वी गेट अ जर्क बैकवर्ड। क्योंकि जो बुलेट है जब वो आगे की ओर क्या करती है, जाती है, राइट, तो उससे जो गन होती है, राइट, तो जिस स्पीड से जो बुलेट है वो आगे की ओर जाती है उसी स्पीड से वी गेट द जर्क, राइट। सो व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन वी गेट अ जर्क, राइट, बैकवर्ड साइड, राइट। इसीलिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पहले ट्रेन किया जाता है, क्योंकि जो पर्सन जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है वो इजीली बुलेट को फायर भी नहीं कर सकता। सेकेंड, द रॉकेट्स स्पीड इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड गैसियस एग्जॉस्ट, राइट, हमने देखा है कि जब जो रॉकेट है, जैसे ये क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, और जब इससे नीचे की ओर गैसेस निकलना शुरू होती हैं, राइट, तो गैसेस पुशेस द अर्थ, राइट, डाउनवर्ड्स। तो जो अर्थ है वो रॉकेट को अपवर्ड क्या करती है, पुश करती है, राइट। सो व्हेन द gases releases when the gases releases out of the rocket, the gases pushes the earth backward sides. In reaction the earth pushes the rocket upward side, और in this way जो rocket है वो fly कर पाता है, right. Third is the horse is able to put the cart, क्योंकि जो horse है, जैसे अगर हम यहाँ पर humans की बात करते हैं, humans या जो है यहाँ पर humans या जो horse है, सी यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, राइट। अब ये जो ह्यूमन है वो इस डायरेक्शन में क्या है, जो है अर्थ को पुल करते हैं बैकवर्ड साइड। देयरफॉर जो अर्थ है वो हमें आगे की ओर क्या करती है, पुश करती है। इसी की वजह से वी आर एबल टू वॉक। सो बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन लॉ and because of the action reaction law we are able to walk as well as the horse is able to pull the cart, right. Third, if there is a boat in the water, right, and if you jump from the boat then you will go the inward side in the reaction। जो बोट है वो इस वाटर में बैकवर्ड की साइड क्या हो जाती है, पुश हो जाती है, राइट। सो टू प्रोपेल द बोट जो है बैकवर्ड साइड क्या हो जाती है, पुश हो जाती है, राइट। इसके साथ ही जो बोट है उसमें उस बोट को पीछे की ओर क्या किया जाता है, वाटर को पुश किया जाता है, तब जाके हमारी जो नाव है वो आगे की ओर जा पाती है। तो टू प्रोपेल द बोट इन वाटर, टू पुश द वाटर बैकवर्ड, राइट, विद द पेडल, तब जाकर हम आगे की ओर जा पाते हैं, राइट। और जब हम बोट से जंप करते हैं तो बोट पीछे की ओर चली जाती है, तब जाकर हम आगे की ओर आ पाते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। और हमने बहुत ही अच्छे से इन द डेप्थ, राइट, वी हैव स्टडीड what is motion as well as we have studied the Newton's law of motion in depth, right. Now we will meet in upcoming lecture and we will study. Till then, thank you.